السلام علیکم، اب تک کے ساتھ میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ کراچی میں کورونا کے مزید 8 کیسز رپورٹ، سندھ بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق 5 مریض شام اور 3 لندن سے کراچی پہنچے۔ ٹیسٹ کے لیے نئے مریضوں کے اہل خانہ کی تلاش جاری۔ کراچی میں نجی ہاسپٹل کا 45 رکنی عملہ بھی قرنطینہ مرکز منتقل۔ کورونا وائرس 109 ممالک تک پھیل چکا، اموات 4000 سے تجاوز، 1,14,000 بیمار۔ ایران میں مزید 43، چین میں 23، اٹلی میں 133 افراد ہلاک۔ جرمنی میں پہلی 2 ہلاکتیں۔ امریکی ریاست نیو جرسی پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین بھی متاثر۔ سعودی شہریوں پر عمان، ترکی، جرمنی، فرانس اور اسپین جانے پر پابندی عائد۔ قوم کے لیے مشکل وقت گزر چکا، اب 2020 ریلیف اور نوکریوں کا سال ہے۔ بجلی اور گیس مزید مہنگی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا محمد میں جلسے سے خطاب، ذخیرہ اندوزوں کو سخت سزائیں دینے کا وعدہ کیا۔ کہا سارا ٹبر خوف زدہ ہو کر لندن میں جا بیٹھا، چوری نہیں کی تو بھاگتے کیوں ہو۔ لوگ فاقہ کشی پر اتر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی۔ حمزہ شہباز کی حکومت پر کڑی تنقید، شاہد خاقان عباسی بولے حکومت نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ چیئرمین نیب ذرا ہائی کورٹ کی باتیں بھی سن لیں۔ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں، ملک اقتصادی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا حکمرانوں کو مذاکرات کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ حکومت نے IMF کی تمام شرائط تسلیم کر لی، مذاکرات میں غیر حقیقت پسندانہ رویہ اپنایا گیا۔ طالبان قیدیوں کی رہائی کا نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ اشرف غنی کا اعلان، امریکہ نے افغانستان سے اپنی افواج کے انخلاء کا آغاز کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اشرف غنی کو مبارکباد۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن اقدامات کی یقین دہانی۔ افغان صدارت کے 2 دعوے داروں نے حلف اٹھا لیا۔ اشرف غنی کی تقریب حلف برداری میں زلمے خلیل زاد، محسن داور اور علی وزیر کی بھی شرکت۔ محسن داور اور علی وزیر کو بارڈر سے کابل تک افغان فوج کا ہیلی کاپٹر لے کر گیا۔ اشرف غنی کی تقریب حلف برداری کے دوران داعش کے راکٹ حملے۔ بھارت میں مسلم کش فسادات کے خلاف قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ حکومت سے معاملہ OIC اور سلامتی کونسل میں اٹھانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا مودی کا نظریہ مسلمانوں سے نفرت ہے، RSS غنڈوں سے سکھ، عیسائی اور دلت بھی محفوظ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ ضلع شوپیاں کے علاقے خواجہ پورہ میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں کرفیو اور لاک ڈاؤن 219ویں روز بھی جاری۔ کورونا اور تیل کی گرتی قیمتیں عالمی سٹاک مارکیٹس کو لے بیٹھی۔ یورپی اور امریکی حصص بازاروں میں 2008 کے بعد بدترین کے ساتھ بازاری۔ آسٹریلیا، جاپان، ہانگ کانگ سٹاک ایکسچینج میں بھی کمی ریکارڈ۔ لندن، فرینکفرٹ، سعودی عرب، قطر اور دبئی کی مارکیٹس میں بھی مندی کے ڈیرے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کریش، سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ مارکیٹ 1160 پوائنٹس کی کمی سے 37,058 پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر $2.34 مہنگا ہو کر 156.58 روپے کا ہوا۔ سونا 700 روپے اضافے سے فی تولہ 95,200 روپے میں فروخت۔
तेल की कीमतों पर रूस और सऊदीया का तनाजा, आलमी मार्केट में निर्खों में 26% कमी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 29 साल की कम तरीन सतह पर। अगर पाकिस्तान में भी कीमत खरीद इसी तनासुब से कम की गई तो पेट्रोल 20 रुपए फी लीटर सस्ता होने को होगा। स्कर्दू में कोस्टर अस्तक नाला के मुकाम पर मोड़ काटते हुए दरियाए सिंध में जा गिरी। 26 अफराद जाँ बहक, लाशें आर्मी हेलीकॉप्टर पर स्कर्दू मुंतकिल। कोस्टर रावलपिंडी से स्कर्दू जा रही थी। अहम खबर, कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 8 केसेस सामने आए हैं। 5 मरीज शाम जबकि 3 लंदन से कराची आए हैं। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 13 बताई जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। कोरोना वायरस के हवाले से अहम खबर ये है, मजीद शफकत अजीज से जानेंगे। शफकत, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज कराची शहर में जो कोरोना वायरस के मरीज सामने आए उनकी तादाद 9 हो गई है। 8 अब से कुछ देर कबल जो है वो महकमा सेहत ने कंफर्म किया कि 8 नए मरीज जो है वो कोरोना वायरस के सामने आए हैं, जबकि शाम को एक मरीज जो है वो कोरोना वायरस का शिकार सामने आया था। जो 8 नए केस हैं, आपको पता चलूं कि ये 3 अफराद जो है वो लंदन के जरिए जो है वो लंदन से पाकिस्तान आए, जबकि 5 जो है वो शाम से जो है पाकिस्तान आए। इस तरह सिंध की अगर बात की जाए तो टोटल अगर केसेस की बात की जाए तो 13 अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुल्क भर की बात की जाए तो 16 अफराद में अब तक कोरोना वायरस तस्दीक हुई, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। एक मरीज 2 रोज कबल जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है, कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुका है, जो ईरान से आया था। ताहम इस पर माहरीन ने तशवीश का इजहार किया है और उनका कहना है कि शहरी जो है वो एहतियात करें ताकि इस मौजी मर्ज से बच सके, और जो लोग इन जो मुतासरा अफराद हैं उनसे राब्ते में है वो भी फौरी तौर पर अपना टेस्ट करवाएं। जी ठीक, शुक्रिया शफकत अजीज, आपने अपडेट किया। गुज़श्ता रोज कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा एक और शख्स की तस्दीक हुई थी। मुतासरा मरीज का इलाज करने वाले निजी हॉस्पिटल के अमले को करंटीना कर दिया गया और निजी हॉस्पिटल के 45 अफराद को 20 दिन तक घरों में रहने की हिदायत भी कर दी गई है। सबा सुल्तान की रिपोर्ट। कराची में कोरोना की दहशत ने आम शहरियों के साथ साथ अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुश्तबा अफराद की तरह निजी अस्पताल के अमले को भी क्वारंटाइन करने की हिदायत। किस्सा कुछ मुख्तसर यूं है कि गुज़िश्ता रोज कराची में कोरोना वायरस का केस रिकॉर्ड किया गया। मुतासरा शख्स 3 दिन कबल अस्पताल में जेरे इलाज था, जिसे आम मरीजों की तरह अस्पताल के अमले ने ट्रीटमेंट दिया। कोरोना वायरस की तशखीस होने के बाद मुतासरा मरीज को तो फौरन दूसरे निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम मुतासरा मरीज का इलाज करने वाले 40 से 45 अफराद को फौरी क्वारंटाइन कर दिया गया। निजी अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम अफराद को तिबी माहिरीन की पूरी रहनुमाई के साथ घरों में क्वारंटाइन होने की हिदायत की गई है। साथ ही 3 दिन बाद 40 से 45 बंदों पर मुश्तमिल अस्पताल अमले के खून के नमूने लिए जाएंगे। क्वारंटाइन करने का मकसद कोरोना की अलामात जाहिर होने का इंतजार करना है। ताहम तमाम अफराद के खून के नमूनों को नताइज के बाद ही अस्पताल अमले को वापस अस्पताल में काम करने की इजाजत दी जाएगी। सबा सुल्तान, कराची, अब तक। कराची से अहम खबर, आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात जारी हैं। क़य्यूमाबाद में आवारा कुत्तों ने 7 साला अयास को काट लिया। अयास की गर्दन और सर पर जख्म आए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। कराची में आवारा कुत्तों के काटे के वाकयात अभी भी नहीं थम सके हैं। मजीद सबा सुल्तान से जानेंगे। सबा सुल्तान, बताइएगा कि आखिर कोई इकदामात नहीं किए जा रहे इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, अफसोसनाक बात तो ये है कि वैसे ही कराची में दीगर चीजों की, दीगर बीमारियों की बहुतात इतनी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद सख्त-ए-ज़ीदी के वाकयात जो है उसमें भी कमी नहीं लाई जा रही। अभी ही क़य्यूमाबाद से थोड़ी देर कबल एक केस रिकॉर्ड हुआ है जिसमें 7 साला बच्चे अयाज को जो है वो कुत्तों ने बिल्कुल भंबोर डाला उसके सर पे, और उसके गले को जो है उसके नरखरे के पास जो है वो चीर फाड़ करने की कोशिश की, जिसके बाद जो है बच्चा शदीद जख्मी हालत में जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चे को तिब्बी इमदाद देने के बाद और वैक्सीनेशन के बाद जो है कौमी इदारा बराए अमराज़ अतफाल मुंतकिल कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है जिला अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से कि बच्चे के जख्म जो है वो शदीद गहरे हैं। इस हवाले से तो कहना है कि रोजाना की तादाद में 70 से 80 केसेस जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक बात है कि महकमा सेहत इस हवाले से कोई काम नहीं कर पा रहा। जी
शुक्रिया सबा, आपने अपडेट किया। पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत का कहना है कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क गए 20 हफ्ते हो चुके। नवाज शरीफ अब तक किसी हॉस्पिटल नहीं गए। अपोजिशन रिक्विजिशन पर इजलास तो बुलवा लेती है, लेकिन उनके अराकीन 4 सेकंड के लिए भी इजलास में शरीक नहीं होते। पंजाब असम्बली इजलास से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजा बशारत ने कहा कि मेट्रो ट्रेन पर 50 अरब रुपए सब्सिडी दें तो अस्पताल या तालीम को पैसे नहीं दे पाएंगे। मेट्रो ट्रेन के लिए सब्सिडी से सेहत व तालीम के बजट पर कट लगेगा। मंसूबा बनाने वालों ने सूबे को मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। अगर हम सालाना मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पर 50 अरब रुपए के करीब या उससे ज्यादा सब्सिडी देंगे, जो कि लाजमन ज्यादा बनती है, वो ज्यादा सब्सिडी देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने अस्पताल जो है उतने नहीं नए बनाने जा रहे, उतनी आप अस्पतालों में सहूलियात नहीं देने जा रहे, उतना तालीम के बजट को आप कट लगा रहे हैं, उतनी नई सड़कें बनाने को कट लगा रहे हैं और एट द कॉस्ट ऑफ 3 शहरों की कॉस्ट। तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम मामला था, इसीलिए हम इसको समझेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रुजू करना पड़ सकता है। अगर उनका इलाज मुआलजा जारी है तो वो उसे कब मुकम्मल करवा पाएंगे। लेटर जो लिखा गया है उसके भी अगर बैकग्राउंड में आप जाएं तो जब मियां साहब के जाने की बात हो रही थी उस वक्त भी हमारा जो वहाँ सफारत खाना है उसके हवाले से बात हुई थी कि वो वहाँ रोल अदा करेगा, उसको साथ इन्फॉर्म रखा जाएगा क्या क्या इलाज हो रहा है, कहाँ का इलाज हो रहा है। और उसी हवाले से ये भी कहा गया था कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो बरतानिया की गवर्नमेंट से भी लिखा जाएगा। ये जाने से पहले ये बात तय थी। बहरहाल वो हमने उस सिलसिले में फेडरल गवर्नमेंट ने लेटर लिख दिया। राजा बशारत का कहना था कि अपोजिशन रिक्विजिशन पर इजलास तो बुलवा लेती है, लेकिन उनके अराकीन 4 सेकंड के लिए भी इजलास में शिरकत करते ना ही बात करते हैं। इख्तिलाफ राय जरूर करें लेकिन दूसरों का मौक़िफ़ भी सुने। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक को चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। तंजीम के रुकन ममालिक को करीब लाने के लिए पार्लिमानी सिफारतकारी अहम किरदार अदा कर सकती है। अब्दुल रज़ाक खट्टी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका के दिन की मुनासबत से मुनक्कदा सेमिनार से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना था कि इस वक्त दुनिया को कोरोना वायरस और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा समेत मुश्तरका नौयत के संगीन चैलेंजेस का सामना है। हमारी मुश्तरका अक़दार और असूलों से वाबस्तगी से इन चैलेंजों का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। From coronavirus outbreak to melting glaciers of Antarctica, from rising Islamophobia to blatant violation of human rights, from building walls to mass migration, the world we live in poses some serious and common challenges. स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि 5 अगस्त 2019 से नरेंद्र मोदी की फस्ताई हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर को एक ओपन एयर जेल बना रखा है। वादी में मवासलाती निजाम की नाकाबंदी ने मुकामी लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। Occupied Kashmir has been turned into an open air prison where gross human rights violation and crippling communication blockade has made the lives of local visible. असद कैसर का कहना था कि दौलत मुश्तरका ममालिक को करीब लाने के लिए पार्लिमानी सफारतकारी अहम किरदार अदा कर सकती है। तंजीम के रुकन ममालिक को भूख, गुर्बत के खात्मे, सेहत और तालीम की फराहमी समेत दुनिया में अमन और सलामती और हम आहंगी के फरोग के लिए कोशिशें करने की जरूरत है। कैमरामैन जमील कियानी के साथ अब्दुल रज़ाक खट्टी, इस्लामाबाद, अब तक।